Hey, hello everyone. Welcome to your own YouTube channel Uniform Forces. First of all, I want to congratulate the aspirants of 2020 who have cleared the physical and medical part and now going to appear for the interview, as well as the 2021 candidates who have cleared the written part. So, I would like to tell the 2021 aspirants that it's the time that you need to start your practice for physical. Don't take it lightly. And regarding how physical test is conducted, what all things you need to keep in your mind, and how medicals are conducted, I have made a dedicated video on that. You can check it in my playlist in the playlist of my channel. And now this is going to be the fourth part of the interview series. So in the last three interview series, I have told about the DEF, what all questions can be formed, not all, but what most probable questions can be formed from the DEF. I have covered that, so you can watch that video. You know, there are many good questions which are probable, and I have told in my video, so please go through that. And in today's video I am going to tell you some more questions, more probable questions, so prepare your answers on them. And apart from that, later in the video I'll be taking some important issues which are important security challenges, so we will do that in detail. So first of all, some of the important questions which you need to prepare. So first of all, challenges in CAPF. Though I'll be bringing the answers for such questions as well, but I would suggest you also to look for the answers and prepare your own notes. Challenges in CAPF, role of CAPF, then how CAPF is different from the defense forces. In the difference, you need to do what are their mandates, and when CAPF is required, or for what purpose CAPF is there, and for what purpose defense forces are established. Then I think you all have heard about Sahayak system. This is also known as buddy system. So do you think it should continue in the forces, especially it's there in defense forces? So Sahayak system के बारे में आप क्या सोचते हैं? What are your thoughts on it? Next is guerrilla warfare. गुरिल्ला वॉरफेयर क्या है, क्यों है? नक्सलिज्म को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें गुरिल्ला वॉरफेयर का नाम आता है, तो ये क्या चीज़ है, ये हमें पढ़ना है. इसके बाद ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज जो कि एक डिफेंस पर्सनल या फिर CAPF पर्सनल या फिर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स में चाहिए होती हैं, तो वो कौन सी क्वालिटीज हैं और आप में कौन सी हैं? ठीक है, आपके अंदर कौन सी हैं, आपके अंदर कौन सी वो क्वालिटीज हैं, स्पेशली AC बनने के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए वो कौन सी क्वालिटीज हैं विच आर रिक्वायर्ड. देन since CAPF comes under the MHA, so what is the I would say structure of MHA? Then I would say CAPFs versus paramilitary. So this should not be actually versus. But what I want to convey you is that there was a term paramilitary, and now this term has been replaced by CAPFs. So you need to understand like what was paramilitary and why we have renamed it to CAPFs. So these are some of the probable questions, though the list is not exhausted. I'll be bringing more such questions. So as I told you that I'll be taking one very important internal security challenge, that is left-wing extremism. I think most of you have heard about it. It is also known as the problem of Naxalism. नक्सलिज्म की समस्या जो है, नक्सलवाद की जो समस्या है, नक्सलवाद की समस्या, that is also known as left-wing extremism. Okay, so first of all, the very obvious question is, what is Naxalism? So what is it? So if I have to tell you what is it, so it is basically
एन आइडियोलॉजी, ठीक है, आइडियोलॉजी इंस्पायर्ड फ्रॉम कम्युनिज्म, कम्युनिज्म या फिर मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म. It is basically an ideology. Okay, so Naxalism, Naxal word is from Naxalbari. Naxalbari was a village. So from there it started. ठीक है, इसलिए Naxalism इसका नाम है. एक छोटा सी चीज़ मैंने आपको बता दी. आइडियोलॉजी है बेसिकली इंस्पायर्ड है कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म से. और ये आइडियोलॉजी जो है ये फार लेफ्ट कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी है. फार लेफ्ट कम्युनिस्ट जो क्या बोलते हैं, जिनके हिसाब से पावर फ्लोज फ्रॉम बैरल ऑफ गन, मतलब बंदूक की नोक पे जो है आप जो भी काम करवा सकते हैं वो करवा दीजिए. ठीक है, उनका ऐसा मानना है. तो क्या है वो मैंने आपको बताया. अब अगर बात की जाए, वैसे इसी क्वेश्चन को अगर ले लिया जाए तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इज इट रियली एन आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, क्या ये अभी भी एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है, तो ये नहीं है आइडियोलॉजिकल मूवमेंट. बिकॉज अब जो है सब कुछ सिर्फ बिजनेस बन गया है. सब कुछ अपने फायदे के लिए, अपनी पोजीशन, पावर और पैसे के लिए किया जा रहा है, जो भी ये लोग कर रहे हैं. ठीक है, तो इट इज नो मोर एन आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, आप ऐसा बोल सकते हैं. और इसको सपोर्ट में एक एग्जांपल दे सकते हैं कि व्हेन द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डिफरेंट डेवलपमेंट स्कीम्स इन दिस एरिया, इन दिस नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया, तो वो लोग यहाँ पर इन स्कीम्स को नहीं आने दे रहे हैं. मेनी टाइम्स वी हैव हर्ड अबाउट न्यूज वेयर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव बीन किल्ड, हैव बीन मर्डर्ड. ठीक है, तो वहां पर आप उस एग्जाम्पल को कोट करके बोल सकते हैं कि इट इज नो मोर एन आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, इट इज प्योरली डन फॉर द बिजनेस पर्पज. ठीक है, बिजनेस और पावर के लिए किया जा रहा है. अब अगला सवाल ये आता है कि व्हाट ऑल स्टेट्स आर इफेक्टेड. ठीक है, कौन कौन से स्टेट अफेक्ट हुए हैं इससे. तो देयर आर बेसिकली वी कैन से 11 to 12 स्टेट्स आर अफेक्टेड, लाइक यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, देन आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ठीक है, महाराष्ट्र. और अब हम केरला के ट्राई जंक्शन पे देख रहे हैं. केरला मतलब केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का जो ट्राई जंक्शन है, वहां पर भी द नक्सलाइट्स आर ट्राइंग टू लोकेट देमसेल्फ, वहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है. सॉरी अगर थोड़ा दिखाई ना दे रहा हो तो ये इंक इसमें खत्म होगी. ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है. इसके बाद अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाई ओनली सम स्टेट्स आर अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म, यही क्यों है, बाकी क्यों नहीं है. ठीक है, तो इसका जो जवाब है नक्सलिज्म जो है, व्हाई ओनली दीज 11-12 states are affected. We can say that it is due to the inequitable development of the states. कुछ states ऐसे थे जहाँ पर development जो है proper तरीके से हो रहा था with the right pace, but on the other hand there were some states जहाँ पर development जो है सही से नहीं हो रहा था. So there was a dissatisfaction among the people. ठीक है, और कुछ लोग जो कि far left communist थे, उनको ये बड़ा आसान लगा और उनके लिए बड़ा फेवर किया कि जो डिससेटिस्फाइड लोग हैं उन्हें अपनी तरफ खींचा जाए. ठीक है, किसी भी तरीके से, क्योंकि जब भी कोई गरीब तबका या फिर डाउन ट्रोडन सेक्शन होता है उसको इस तरीके से ल्योर करना बहुत आसान होता है. फॉल्स होप्स देकर, फॉल्स ड्रीम्स देकर उन्हें अपनी तरफ खींचना आसान होता है. तो वहां से ये शुरू हुआ था. मतलब ये इस वजह से है, ये जो रीजन है कि सिर्फ यही स्टेट्स अफेक्टेड क्यों हैं. ठीक है, और ये बेसिकली एक और चीज बताना चाहूंगा कि दिस इज बेसिकली अ क्लास स्ट्रगल. नक्सलिज्म जो है क्लास स्ट्रगल है. क्लास कैसी, रिच क्लास, जो कि रिच लोग हुआ करते, लैंडलॉर्ड्स हुआ करते. ठीक है, रिच लैंडलॉर्ड्स, और कौन, बेसिकली फार्मर्स. ठीक है, तो ये उन दोनों के बीच का संघर्ष जो है ये वो बयां करता है. रिच क्लास जो है डोमिनेटिंग है, सारी पावर्स इसके पास है. फार्मर्स जो हैं बिल्कुल ऑप्रेस्ड हैं. ठीक है, उनके पास कोई पावर नहीं है. तो यहाँ पर इन लोगों ने हथियार उठाए, फार्मर्स ने, अगेंस्ट द रिच पीपल. ये इस तरीके से स्टार्ट हुआ था. जो आपको नक्सलबाड़ी एक विलेज बता रहा था, वहां पर इस तरीके से ये मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था. ठीक है, और ये क्लास स्ट्रगल बोला जा सकता है इसको. अगला क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से स्टेट्स जो हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टेड स्टेट्स हैं. मोस्ट इफेक्टेड, तो मोस्ट इफेक्टेड में पहले छत्तीसगढ़ है,
छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड है, झारखंड, और उसके बाद है बिहार। तो ये एक ऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं अभी, चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस बिफोर द गवर्नमेंट कि हम इसको टैकल कर सकें। तो पहला चैलेंज है गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर में द नक्सलाइट्स पीपल आर वेरी वेरी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, ठीक है। तो व्हाट इज गुरिल्ला वॉरफेयर? गुरिल्ला वॉरफेयर इज बेसिकली व्हेन यू नो when you attack in an unorganized manner और एम्बुश लगा के, घात लगा के आप लोग वार करते हैं, तो उसे गुरिल्ला वॉरफेयर बोला जाता है। ये एक वॉर टेक्टिक है। तो नक्सलाइट्स इसको इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए किसी तरफ से अगर फोर्स पर्सनल्स जा रहे हैं तो वो छुपे हुए हैं पेड़ों के पीछे, आसपास, इधर उधर, और फिर वो एकदम से अटैक कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज गुरिल्ला वॉरफेयर। तो वो टेक्टिक्स में ये लोग हाईली स्किल्ड हैं, ठीक है। दूसरा है कि वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट deep planted IEDs. Now IEDs stands for improvised explosive devices. So what happen is you might have heard that so and so number of the CAPF personnel or the state police personnel have been killed in a Maoist attack, ठीक है, because of the IEDs, because of the deep planted IEDs. So we still lack the technology to detect the deep planted IEDs, due to which we are not able to comprehend or detect such IDs, और जिसकी वजह से we lose our security personnels. अभी recently भी हुआ था, कुछ टाइम पहले सुकमा का अटैक हुआ था। बहुत सारे अटैक्स ऐसे हैं, मतलब this is not something which is very rare, this is something which is very common. ये unfortunate भी है कि we still are lacking that technology, हम अभी भी वो टेक्नोलॉजी नहीं ला पाए हैं, ठीक है। तो ये वाला रीज़न है अगला। और नेक्स्ट रीज़न, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि लैक ऑफ डेवलपमेंट इज द की, ठीक है। अगर डेवलपमेंट होगा, पीपल विल बी सेटिस्फाइड, दे विल बी हैप्पी, दे विल बी विद द गवर्नमेंट, दे विल बी प्रो गवर्नमेंट, दे विल नॉट बी एंटी गवर्नमेंट। इट इज दिस पॉइंट बेसिकली मीन्स द मेजर पॉइंट इज लैक ऑफ डेवलपमेंट, जिसकी वजह से जो है लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं, ठीक है। ये चैलेंजेस हैं। इसके बाद अगली चीज में बात करूं तो रिसेंट टाइम में देखा गया है, मीन्स आफ्टर 2011 अगर हम ये ग्राफ देखें तो LWE की समस्या को, LWE की जो चैलेंज है, या फिर मैं बोलूँगा कि उसका जो इफेक्ट है वो कम हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे लोगों ने जो है नक्सलिज्म पे सरकार ने नक्सलिज्म पे कंट्रोल पाया है, और बहुत सारे लोगों ने सरेंडर भी किया है। तो डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन पाया गया है यहाँ पे आफ्टर 2011-12 में से बाद से डिक्लाइन यहाँ पाया गया। इसके रीजंस क्या हैं? पहला तो ग्रेटर presence of security forces. Now you can see that not only the CRPF but also other CAPFs like ITEP, CISF, the personals from such forces as well serve in the Naxalite belt. ठीक है, at least 2 battalions of every CAPF is present in the Naxalite belt. Then there is loss of कार्डर्स। ये कार्डर्स मतलब कौन से कार्डर्स हैं? द नक्सलाइट वंस, ठीक है। नक्सलाइट लोगों के जो कार्डर्स हैं वो, उनमें कमी आई है देखने को, बिकॉज ऑफ अरेस्ट एंड सरेंडर्स। बहुत सारे लोग सरेंडर भी करते हैं, आपने न्यूज़ में देखा होगा, किसी नक्सलाइट के लीडर ने, कमांडर ने सरेंडर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटर मॉनिटरिंग of development schemes. Now as I told you that development is highly important to overcome this challenge. तो better monitoring अगर होगी, if the government both at both state and central level are ensuring the proper implementation, the timely implementation, and ensuring that the development fruits are being reached to the people, तो वहाँ पर चीज़ें जो है improve होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट आर दी एफर्ट्स द गवर्नमेंट एट बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल हैज अंडरटेकन, ठीक है। एफर्ट्स क्या लिए हैं? तो एफर्ट्स 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला है ऑन सिक्योरिटी फ्रंट, सिक्योरिटी फ्रंट पे क्या एफर्ट्स किए गए हैं, और दूसरा है डेवलपमेंट फ्रंट पर क्या एफर्ट्स किए गए हैं। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों फ्रंट्स पर काम करें, सिर्फ एक फ्रंट पर काम करने से बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। तो सिक्योरिटी फ्रंट पे क्या किया गया है?
CAPFs को जो है दे आर बेटर ट्रेंड, ठीक है, और उनको इक्विपमेंट बेटर दिए जा रहे हैं इस टाइम पर, और स्टेट पुलिस को जो है ट्रेन किया जा रहा है अच्छे तरीके से. एंड देन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द CAPFs एंड द स्टेट पुलिस, बिकॉज स्टेट पुलिस इज समथिंग विच इज हैविंग द knowledge of the the ground reality. State police is very well aware of the ground realities of the region where it is serving, ठीक है. CAPFs को हो सकता है उतना अच्छा ना पता हो जितना स्टेट पुलिस को पता है, क्योंकि जहाँ पर जो रहता है उस लोकेशन की इन्फॉर्मेशन उससे ज़्यादा अच्छे से पता होती है. इसके बाद बटालियंस के जो नंबर हैं वो भी इंक्रीज किए जा रहे हैं. एज आई टोल्ड यू कि सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेजेंस जो है बढ़ाया जा रहा है. सारे CAPFs को इस टाइम पे डिप्लॉय किया गया नक्सलाइट बेल्ट में, ठीक है. ये है डेवलपमेंट फ्रंट पर बात करें तो डिफरेंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, यू वी सी लाइक वन बंधु स्कीम, देन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, देन सो मेनी स्कीम्स आर नाउ बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, जिसकी वजह से जो है सिचुएशन जो है इम्प्रूव हुई है, डेवलपमेंट हो रही है. वहीं जैसे पानी जो है हमारा, बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, देन हेल्थ, एजुकेशन, सो दीज थिंग्स आर बीइंग एंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट बोथ एट सेंटर एंड स्टेट लेवल. तो जिस वजह से जो है नक्सलाइट्स की जो प्रॉब्लम है वो डिक्लाइन हो रही है 2011-12 के बाद से, ठीक है. इसके बाद कुछ स्पेसिफिक मेजर्स की बात करूं, ये तो मोटे मोटे तौर पर हो गया होलिस्टिक तरीके से. अगर स्पेसिफिक मेजर्स की बात करूं कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक मेजर्स क्या लिए हैं, तो स्पेसिफिक मेजर्स बोलता हूं. सो पहला, देयर इज बैन ऑन CPI माओइस्ट. CPI माओइस्ट पे बैन कर दिया गया है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन बैन है. सेकंड, देयर इज सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन स्कीम. सो ऑल दोज नक्सलाइट्स हु वांट टू रिटर्न बैक टू द मेन स्ट्रीम, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डू सो, but then the government has come forward and it has told, okay, we will provide you such and such facility, we will provide you some amount so that you can start your business, or so that you can develop your skill and then find some livelihood for yourself. तो वहाँ पर ये सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन स्कीम बहुत हेल्पफुल रही है. इसके बाद सिक्योरिटी रिलेटेड expenditure scheme. So this is again about the infrastructure related to security, helping state police and the CAPFs through technology, different devices. So here the government is providing some amount so that a new technology can be procured. Okay, something important, something technologically advanced thing can be installed to tackle the problem. ये किया गया है. इसके बाद आपको पता है कि CRPF के जो कोबरा है, कोबरा स्पेशली इसी के लिए बनाई गई है, ठीक है. इसके बाद बात करूं तो सिविक एक्शन प्रोग्राम्स जो हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स, इनमें क्या होता है, हेल्थ कैंप लगाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं अबाउट डिफरेंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, अबाउट डिफरेंट प्रोग्राम्स बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट एट लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल, उसके बारे में बताया जाता है. दिस इज बेसिकली, आपने CAPFs में देखा होगा, CAPFs ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सिविक एक्शन प्रोग्राम्स, ठीक है. इसके बाद बात करूं तो इंटेलिजेंस मैकेनिज्म को जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटेलिजेंस मैकेनिज्म को है स्ट्रॉन्ग किया गया है, ठीक है. कैसे स्ट्रॉन्ग किया गया है, एक जॉइंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, मल्टी एजेंसी सेंटर की स्थापना की गई है, मल्टी एजेंसी सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, ठीक है. ये स्टेप्स लिए गए हैं स्पेसिफिक मेजर्स की अगर मैं बात करूं तो. और एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और बता देता हूं आपको. एक पॉइंट है, हाँ, एक है स्कीम्स, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं, एक रोशनी स्कीम है, ठीक है, ऐसे एकलव्य रेजिडेंशियल स्कीम है. तो ऐसे आप जो स्कीम्स हैं वो आप स्कीम्स को यहाँ पे बता सकते हैं, डिफरेंट डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, बहुत सारी हेल्प कर रही हैं, ठीक है. ये स्पेसिफिक मेजर्स थे. अब ये तो बात हुई कि व्हाट इज LWE
and which all states are affected, what the government is doing, the steps taken by the government both at center and state level. But then the interviewer will be interested in knowing what are your opinions or what are your ways to sort out this problem or to help in alleviating or reducing Naxalite problem. They are more interested in your opinions, because this interview is basically to test your knowledge or your opinions. ठीक है, तो आपके opinions क्या हो सकते हैं? तो पहले तो आप बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट फ्रूट जो हैं, फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, they should reach to all, especially the downtrodden. जो नीचे तबका है उसको डेवलपमेंट फ्रूट जरूर मिलने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ सम न्यू इंडस्ट्री, some new plant of steel and iron has to be built, so we'll cut down some forest, and forests are the shelters of the tribal people. So tribal people will be dislocated and then new plant will be established over there. So you are saying that due to this dislocation, the tribal people will lose their home, they'll lose their livelihood. So ultimately we can say that it will impact their lives to the core. ठीक है, अगर हमें उन्हें बचाना है वहाँ से, तो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी रीलोकेट देम टू सम गुड प्लेस वेयर सम बेसिक फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू देम अलॉन्ग विद द लाइवलीहुड. ठीक है, अगर ऐसा होगा देन ओनली वी कैन से कि लोग जो हैं उनका डेवलपमेंट हो पा रहा है. अदरवाइज सिर्फ इंडस्ट्रीज लगाने से फायदा नहीं होता है. जो वहाँ के लोग हैं अगर उनके लिए कुछ काम नहीं हो तो मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज लगाना बेकार है. तो ऐसे जो डेवलपमेंट फ्रूट हैं, जो इंडस्ट्री लगाई है, कुछ वहाँ पे विकास हुआ है, तो उसका जो कुछ बेनिफिट है वो ऐसे लोगों को भी मिलना चाहिए जो वहाँ पर पहले रहते थे या जो वहाँ से डिसलोकेट हुए हैं. ठीक है, दूसरी चीज़ ये है पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट. नाउ अल्टीमेटली इट इज द पीपल, if they are satisfied, if they are happy, if they are provided with basic amenities, then they will be happy. They will be pro-government rather than being anti-government. They will not take weapons in their hand. They will not revolt against the government. So we need to win the hearts and minds of people. Now again, how will this be possible? This will be possible when the government implements the scheme and they are actually visible on the ground. It's not something कि सिर्फ किताबों में पढ़ लिया या फिर अखबारों में छाप दिया और भाषण में बोल दिया कि we are spending so and so crores for the development of the tribal people, but ground reality कुछ और है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ground reality जो है, अगर ground पे situation जो है improve होगी, then only we can say that we have been successful in winning the hearts and mind of the people. यहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है. So I think these are the two most important points which I can say from my side, which are in my opinion. ठीक है, you can also you can also find some more points from your own. और इसके बाद गवर्नमेंट तो कर ही रही है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे IAS IPS लोग बैठे हुए हैं. दे आर लाइक द रिच क्रीम जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी की IAS, वो बैठे हुए हैं पॉलिसीज बनाने के लिए, तो वो काम कर ही रहे हैं. बट ये पॉइंट्स मुझे लगे, ज़रूरी नहीं है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स ही बताओ सोल्यूशन. दे कैन बी वेरी सिंपल एज वेल. ठीक है, ये यहाँ पर मेरे हिसाब से जो है ये हमारे ओपिनियन होने चाहिए कि ऐसे एफर्ट्स लेने की और ज़रूरत है. आई थिंक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी हैं. ठीक है, मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं. आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर द इंटरव्यू, and even if you write this, even if you are appearing for the written part, then also for paper 2, I think this is sufficient. One more thing, you need to update or add from current development. न्यूज़ में अगर आप कुछ देखते हैं related to नक्सलिज्म, ठीक है, मान लीजिए the government has appointed some interlocutor or there has been some clashes, ठीक है, बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड द नक्सलिज्म. सो वहाँ पर आप उन चीज़ों को ऐड कर लेना साथ में. बट आई थिंक मोर और लेस जो है वो बेसिकली यही रहता है जो मैंने आपको बताया है. इसके अलावा आप अगर अपनी तरफ से तैयारी करना चाहते हैं तो देयर इज़ गूगल. ठीक है, जितना सर्च कर सकते हैं कीजिए, आपकी मर्जी है. बट मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है फॉर द इंटरव्यू.
Now we will take next topic, that is Northeast insurgency, in the next video. And again I am reminding you that if you haven't watched my videos, you can go to the Uniform Forces channel on YouTube, and then you can find all the videos in the playlist. I have made dedicated videos on all the topics and you can watch them. It is for all the aspirants, be it 2020, 2021, 2022, all aspirants in the future. Okay, and if you have any doubt, so you can ask me in the comment box of the YouTube, or you can also ask me in the Telegram group. Telegram group name is Uniform Forces. Join it. There are many aspirants, serious aspirants, who will be helping you, and you can also help them as well. So take care. See you in the next video.